will do the first program. This is your C++ screen. This is Turbo IDE, but we will do later in Dev IDE. IDE means Integrated Development Environment. Where you will do your programs, your coding, that environment is IDE. Fine. This is earliest IDE, Turbo. Today we will do in this. First program we will learn in this Turbo IDE. In next class, in next week, we will do Dev. In your syllabus, it's a Dev IDE. Fine. So here is a hash include iostream.h. It is a header file. Conio.h. It is also an header file. iostream is used to input output stream. इनपुट और आउटपुट जो भी आप देते हैं उसके लिए हमारी हेडर फाइल है. Conio.h for getch. Getch is a function. ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ. Main is your main function. Without main we can't execute our program. Fine. Next is curly brace is your syntax. Main के बाद आपको curly brace लगाना जरूरी है, otherwise it will give error. It is cout for output, and this is angle brackets. ये आपको लगाने जरूरी हैं cout के साथ. It's a syntax. Then hello everyone. ये text जो आप टाइप करेंगे with quotes, and semicolon is a terminator. That means this line is end. And last at getch means when program is execute, then screen will pause for a second so that we can see our result on the result screen. If we will not um, write this getch, the screen will not pause on our result screen. इतना फास्ट एग्जीक्यूट होता है कि हमें कुछ लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं. कंट्रोल F9 के साथ ये आप देख सकते हैं. रन और कंपाइल अलग अलग भी हो सकता है. रन पे कंट्रोल F9 इसका शॉर्टकट है. This is your result screen. Hello everyone. It is written on a result screen. Fine. We will come back with enter screen. Now I will show you without getch. Control F9. देखिए हल्का सा, अगर आप फिर से कर रही हूँ मैं, देखिए इतना भी बहुत हल्का सा जाता है और स्क्रीन वापस आ जाता है. देखिए वंस अगेन बहुत केयरफुली एक ब्लिंक करती है लाइन. दैट्स इट. रिजल्ट स्क्रीन पर पॉज नहीं करता विदाउट getch. ये समझ में आया बात? स्टूडेंट्स, आई एम ऑडिबल टू यू? यस मैम. यस मैम. getch का फंक्शन क्लियर हुआ आपको? मैम कुछ स्टूडेंट सेंटर नहीं कर पा रहे. ओके अच्छा. ओके क्लियर हुआ बच्चे ये बात आपको?
देखने में तो अच्छा लगना चाहिए। इसे बक्से में है ना, तो चाकू नहीं निकाल लूंगा। यस, विजिबल है स्क्रीन बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट C++ प्रोग्राम। इसमें आपको मैंने हर बात एक्सप्लेन करी। दिस इज हेडर फाइल्स, मेन, करली ब्रेसेस। लास्ट में आपको करली ब्रेस क्लोज करना भी जरूरी है। गेट ch इज फॉर गेट ch टू पॉज अवर स्क्रीन, राइट? उसके बाद लास्ट में हम अपना करली ब्रेस क्लोज करेंगे। डन। हैश, इफ हैश इंक्लूड से पहले अगर आपको मैसेज देना है, यू विल do your message by this way. Write a program. This is my first program. Right? This is our output operator, and for cin we use input operator. Right? उन्हें हम इनपुट ऑपरेटर बोलते हैं और ये हमारा आउटपुट ऑपरेटर रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपके उसमें वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर किए जाते हैं। हाउ कैन वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स? एडमिट हो रहा है बार बार।
Next is printing name. How can we print our name? Main function cout. If now if we want to print our name, then we have to take the data type. Fine. So उससे पहले मैं आपको बताती हूँ addition of two numbers. Addition of two numbers. How can we declare the numbers? Int a is our variable. Fine. For example, a is equal to 4. Semicolon is must. Or if you want to take the another variable, we can write it here also. B is equal to 4. And one more variable we need, result और sum. वो भी हमें int ही चाहिए. So हम एक ही लाइन में इन सबको डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें इंटीजर डेटा टाइप int साथ में लिखना पड़ेगा. एक और मेथड क्या है, आप अलग अलग लाइन में लिखेंगे तो आपको यहाँ सेमीकोलन एंड हर बार आपको int देना पड़ेगा, int b सेमीकोलन, then in next line also sum, int sum. मीन्स हमारा जो वेरिएबल है a, b और sum, इनमें हम जो डेटा फिल करेंगे, जो असाइन करेंगे, वो इंटीजर टाइप का है. दैट्स व्हाई वी हैव टू डिक्लेयर दीज वेरिएबल्स एज अ इंटीजर वेरिएबल्स. फाइन. ए, बी और सम, हम इनको तीनों को एक लाइन में जैसे मैंने आपको बताया था वैसे भी डिक्लेयर किया जा सकता है. नाउ विद इज इक्वल टू जब मैंने वैल्यू डाला, दैट मीन्स वी असाइंड दिस 5 टू ए. ठीक है, this 5 or 4 any number to a, then semicolon. और इसी तरह से is equal to हमारा क्या हेल्प करता है, is equal to हमारा नंबर असाइन करने में हेल्प करता है. the function of is equal to is assign the value, right side value to the left side's variable. This is a assignment operator. Fine. Next, here also you have to put the semicolon. Semicolon is a terminator. That means कि आपको terminate करना है line. Fine. Now a is, अब हम क्या लिखेंगे, sum is equal to a plus b. Simple. a plus b. That's it. और cout क्या करवाएंगे हम, cout is for print. C में आपका printf आता है प्रिंट के लिए, यहाँ पर आपको cout मिलेगा प्रिंट के लिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे sum semicolon. Now get ch semicolon and then curly bracket close, जो हमने मेन पे स्टार्ट किया था. Control F9. The result is 11. Fine. So this is a constant values. A 4 और 7 के लिए है, but you are a programmer. आपने प्रोग्राम क्रिएट करना है फॉर एनी यूजर. कोई भी यूजर आए आपके पास और अपनी वैल्यू डाले और आप उसको आंसर मिले. हाउ कैन वी डू दिस? हम यहाँ पर फिक्स नहीं करेंगे वैल्यू.
हम यहाँ पर असाइन नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं होगी। हम कहाँ वैल्यू असाइन करेंगे? करेंगे ही नहीं, हम यूजर से वैल्यू मांगेंगे। यहाँ पर एंटर किया, ऊपर लिखा हमने सी आउट एंटर योर फर्स्ट नंबर। जो आपने एज इट इज प्रिंट करवाना है स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट यू विल राइट इन अ कोट्स। देन सी इन इज मस्ट। सी इन के साथ ये वाला ब्रैकेट लगता है, इंसर्शन ब्रैकेट, एक्सट्रैक्शन ब्रैकेट और इंसर्शन ब्रैकेट्स, ठीक है। ये एक्सट्रैक्शन ब्रैकेट्स है, ये इंसर्शन ब्रैकेट्स है। सी इन के साथ लगेगा तो हमें क्या, फर्स्ट वाला वेरिएबल, तो यहाँ पर आप लिखोगे सी इन ए। दैट मीन्स जो यूजर वैल्यू डालेगा, you will accept that variable, that value, ये वाला वेरिएबल वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। फॉर एक्सेप्टेंस you will write C in. One more time you will write C out, enter your second number, enter your second number, semicolon, and once again C in for B, acceptance for the second number. Fine. Now the third statement is same, sum is equal to a plus b and C out sum. यहाँ पर sum को मैंने डबल कोट्स में नहीं लिखा। That means here the sum will print the value of the sum. जो भी a और b को प्लस करके आएगा, it will assign to the left side variable and C out will print the value of that variable. Clear? Now with control F9, here it is saying enter your first number. ये जो 11 आपको दिख रहा है, ये पहले वाली एग्जीक्यूशन का आउटपुट है, ठीक है। एंटर योर फर्स्ट नंबर, यूजर से मांगा, मैंने दिया 12। एंटर योर सेकेंड नंबर 23, एंटर, आउटपुट इज 35। अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई डाउट? Now if you want to print a name, अगर आपको नेम प्रिंट करना है, then the data type should be char. Char डेटा टाइप के साथ क्या रहता है? अगर हमें नेम प्रिंट करना है तो CHAR char। नाउ वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जो हमने प्रोग्राम में वेरिएबल शो करना है, तो मैंने लिखा सपोज नेम। अब नेम के साथ ये जरूरी है डिक्लेरेशन के साथ कि स्क्वायर ब्रैकेट में आपको उसका मैक्सिमम लेंथ देना है, नेम का मैक्सिमम लेंथ। किसी भी यूजर का मैक्सिमम लेंथ 20 से ज्यादा नहीं होता, 15 से ज्यादा नहीं होता कैरेक्टर्स लेंथ। आप ज्यादा भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, इट्स अपॉन यू, इट्स अपॉन टोटली ऑन प्रोग्रामर्स, ठीक है, कि आप कितनी लेंथ देते हैं। जितना आप यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे, उससे ज्यादा की लेंथ यूजर अगर डालेगा तो वो एरर देगा। तो हम मैक्सिमम लेंथ डाल सकते हैं फॉर गेसिंग कि इतना लंबा नेम यूजर का हो सकता है, ठीक है। तो कैरेक्टर के साथ ये थोड़ा सा हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आपको कैरेक्टर देना है, नेम देना है, या अदर कोई वेरिएबल एज अ कैरेक्टर शो करना है, तो आपको यहाँ पर उसका देना पड़ेगा, लेंथ उसकी देनी पड़ेगी। अब लास्ट टाइम मैंने जो दिखाया था, चलिए वो मैं अभी बताती हूँ। देन यहाँ पर हम सी आउट लिखेंगे, एंटर योर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम नहीं, ओनली नेम लिख देते हैं। एंटर योर नेम।
कॉलन के साथ, so दैट कि उसमें थोड़ा सा गैप रहे। एंड सी इन हमने किया नेम, क्योंकि हमारा वेरिएबल नेम क्या है, नेम, नॉट ए। इस टाइम पर हमारा वेरिएबल नेम है। ठीक है। अब सी आउट में अब हमें ये दो स्टेटमेंट्स हमें नहीं देनी है, इनकी जरूरत नहीं है हमारे को, और सम भी नहीं देना है। यहाँ पर हम देंगे नेम, सी आउट नेम, जो यूजर ने प्रिंट, यूजर जो देगा वो प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब हम कंट्रोल F9। Ma'am, students are trying to join. ओके, Ma'am, one student is trying to एंड join. फाइन बच्चे, एंटर योर नेम आशीष। Ashish is printed. Fine. So by this way we can declare the char option. Now one more thing कि अब मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ, तो जितना भी हमने आउटपुट किया है वो मुझे स्क्रीन पर दिखता है, जितनी बार भी मैंने किया है। ये तो हम क्लोज करने के बाद वापस दिया है नेम, यहाँ पर एंटर योर नेम, तो मैंने दिया सुमन, इट इज प्रिंटिंग सुमन। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँ कुछ आउटपुट का व्यू, देन यहाँ पर हम लिख सकते हैं योर नेम, योर गुड नेम इज with colon semicolon control F9। ठीक है। error and your name, your good name is, यहाँ पर सुमन आगे प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैंने वैल्यू नहीं दी यहाँ पर। हमें यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर अगेन एक्सट्रैक्शन ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर हमें नेम देना है कि हमारा जो वेरिएबल है उसका वैल्यू प्रिंट करेगा ये नेम। ठीक है। सेमीकोलन, योर गुड नेम इज आरव। अब आप देख रहे हैं लास्ट वाले जितने भी रिजल्ट्स थे वो हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो लास्ट वाले जितने रिजल्ट थे। हाउ कैन वी क्लियर दिस स्क्रीन? आपको जब डेक्लेरेशन पार्ट के बाद यू कैन राइट हियर CLRSCR, CLRSCR, clear screen with brackets and semicolon. Now control F9, तो लास्ट वाले जितने भी रिजल्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपको स्क्रीन लेटेस्ट फ्रेश स्क्रीन दिखेगी। ठीक है। हरमन, योर गुड नेम इज हरमन। क्लियर बच्चे? That was the declaration of character data type. Variable declaration मैंने आपको बता दिया, how can we declare the variables. Okay.
इफ वी वांट टू हैंडल द स्ट्रिंग, तो हमें ऊपर स्ट्रिंग हेडर फाइल जो है इंक्लूड करनी पड़ेगी। हैश इंक्लूड string.h। इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के टाइम पर। एक हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है एंडल, से नेक्स्ट लाइन में वर्क करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आए तो इससे नेक्स्ट लाइन में आती है। ठीक है, एंडल एस्केप सीक्वेंस है ये। माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू So if you want to use a string in your program, then the string you have to declare as a string. 3 errors. My string. अच्छा, my goodness.
Okay, we will discuss it later. What is the error in this program? Fine. Next program is mm, let us discuss the next program. Addition of two numbers we had already discussed, and the next is if condition control statements. How can we declare the conditional statements? Means, for example, if we are human being, we can decide which path is the correct for our situation. For example, you are going to school at morning and you are thinking कि you are late, then you will take a shortcut. Fine. वापस आते टाइम अगर आपको लगे कि शॉर्टकट में रश होगा तो आप वो वाला ट्रैक पकड़ेंगे जिस पे रश नहीं है. सो दिस इज डिसीजन आपका है. तो हाउ कैन कंप्यूटर डिसाइड द करेक्ट सिचुएशन? इफ स्टेटमेंट इज फॉर दैट थिंग, इट इज अ सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट. तो हम कंप्यूटर को डिसीजन लेने के लिए अगर हमें उसको तैयार करना है, देन वी विल गिव देम द कंडीशन. ठीक है, वो कंडीशन जो है उसे हम इफ कंडीशन कहते हैं. इफ स्टेटमेंट, इफ और इफ एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच कंडीशनल, ये सब हमारा इन्हीं स्टेप पर यूज होता है. सबसे पहले इफ स्टेटमेंट है, उसका फॉर एग्जाम्पल ए और बी वेरिएबल्स हैं. अगर आपको चूज करना है हु इज ग्रेटर और हु इज लेस देन यू विल गिव द ए लेस देन बी. तो a is a 10 and b is a 20, and if a less than b, then you condition it true, then it will print a is less than b. This is the input situation. And next, if else statement, if you will put a condition in the if condition. अगर आप
Yes, next is your nested if condition. If you will put a condition in a condition, means एक condition के अंदर अगर आप दूसरी condition लगाते हैं, that is nested if condition. Fine. Next is iterative or looping statement. Looping statement, for loop, while loop, do while loop and nested loops. ये हमारे कुछ लूप हैं. लूप किस लिए यूज करते हैं कि जब हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करवाना हो तब हम लूप यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है आपने, ठीक है. 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवाने के लिए आप कितने वेरिएबल्स लोगे? 100 वेरिएबल्स. तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर? अगर कुछ स्टेटमेंट्स हम रूटीन में उनको यूज करें, पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक हम कुछ फंक्शंस ऐसे हैं कि हम वो करते ही करते हैं, डेली हमारा फिक्स है कि ये काम हमने करना ही करना है. उसी तरह से कुछ स्टेटमेंट्स अगर किसी एक काम के लिए फिक्स कर दें कि ये स्टेटमेंट्स 4 स्टेटमेंट्स इसी काम के लिए यूज होंगी, ठीक है, तो उन्हीं को एग्जीक्यूट अगर बार बार करवाया जाए, दैट इज लूप. लूप इज अ set of statements. When these statements are executed repeatedly, that is loop. उन 4 स्टेटमेंट्स के साथ हमारा जो है लूप वर्क करता है, ठीक है. inline functions. inline functions जो functions के अंदर वर्क करते हैं, that are our inline functions. set precision, input output formatting, जो इनपुट और आउटपुट के लिए सेट किए जाते हैं फंक्शंस, दैट आवर सेट प्रिसीजन. ओके. इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम फ्लैग्स, जिस तरह से हम डिक्लेयर कर देते हैं कि व्हेन वी विल गॉट दिस कंडीशन, अगर हमने ये कंडीशन मिल गया, दैट मीन्स कि हम एक फ्लैग दे दें कि ये हमारा काम हो गया. तो फ्लैग इज फॉर दैट फंक्शन टू डिक्लेयर अवर वर्क इज डन. फ्लैग नेम, हमारे पास कुछ फ्लैग्स हैं, skip, ws, write, internal, deck opt. इन फ्लैग्स के साथ हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं प्रोग्राम में किसी एक सिचुएशन में कि दिस वर्क इज डन.
कहाँ चली गई मैडम? क्लास कंटिन्यू होगी नहीं पता है? क्या मजा चल रहा है? क्लास में रहे भाई, अब 11 बजे तक तो भाई क्या पता भी आ जाए मैडम। मुझे तो लग रहा है 11 बजे आएंगी मैडम, 11 से 1 वाले में। तो हमें क्यों बुला लिया सुबह सुबह 9 बजे? सीरियसली यार, मजाक चल रहा है कसम से।
अब में से आते तो जॉब वाले होंगे। आज छुट्टी और सुबह सुबह क्लास। भाई जिनका नाइट प्रोजेक्ट चल रहा है उनकी सोच, रात कहीं भी नींद पूरी नहीं है, सुबह सुबह इनकी क्लास में लगे पड़े हैं।